السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسموپولیٹن۔ ناظرین، کراچی کی ہفتہ بھر کی اہم خبروں میں یوم دفاع پاکستان پر سندھ اسمبلی میں متفقہ قرارداد کی منظوری ہو یا ڈریگنز آف پاکستان کی تقریب ایوارڈز میں بہترین مارکیٹنگ کمپنیز کی جیت ہو، جامعہ کراچی میں شعبہ فوڈ سائنسز کی نیوٹریشن ایکسپو کا انعقاد ہو یا اردو اور اطالوی زبان کے فروغ کا مطالبہ ہو، سندھ دستکاری کے ورثے کے فروغ کے لیے ثقافتی نمائش کا انعقاد ہو یا گورنر سندھ کی چین کے سفیر سے ملاقات ہو یا وزیر اعلیٰ سندھ کی اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے لگژری گاڑیوں کی منظوری ہو یا شہر کراچی میں شجرکاری مہم کی پیش قدمی ہو یا ہو ٹک ٹاکرز پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت ایکشن کا حکم نامہ جاری۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے اور ملاحظہ کیجیے ایسی بہت سی خاص خبریں کاسموپولیٹن میں۔ ناظرین، پہلے چلتے ہیں لاہور سے اسکا احمد کی جانب۔ جی اسکا، لاہور سے اس ہفتے کی خاص خبریں کیا ہیں؟ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاسموپولیٹن لاہور کے مکمل احوال کے ساتھ اسکا احمد۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس ہفتے کی اہم کاسموپولیٹن ہیڈ لائنز کی جانب۔ پنجاب میں ملکی تاریخ کے پہلے اور سب سے بڑے اسکول نیوٹریشن پروگرام کا آغاز ہو گیا۔ لاہور میں جان بوجھ کر 74 بار ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑی پکڑی گئی۔ بھارتی جیلوں سے 14 پاکستانی رہا ہو کر وطن پہنچ گئے۔ امیر بلاج اور تیفی بٹ کے بہنوئی کے قتل کے بعد لاہور میں گینگ وار پھیلنے کا خدشہ۔ اسموک پر قابو پانے کے لیے موسم سرما سے قبل لاہور ٹریفک پولیس متحرک۔ یوم دفاع کے موقع پر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے شہداء کی یادگاروں پر غازیوں فوج کے افسران اور جوانوں نے سلامی دی۔ میاں والی پولیس نے چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ چیمپئن کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کی 5 ٹیموں کے کپتانوں کا انتخاب۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں رضیہ ہمیں بتائیں گی اسلام آباد کی خاص خبریں۔ جی رضیہ۔ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضیہ خان اور آپ کو آگاہ کروں گی اسلام آباد میں رونما ہونے والے اہم واقعات اور خبروں سے۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ وفاقی دارالحکومت میں 16 سال بعد پہلا پولیو کیس رپورٹ۔ 9 ستمبر سے ملک بھر کے 115 اضلاع میں پولیو مہم شروع ہوگی۔ پی این سی اسلام آباد میں سجی خصوصی تصویری نمائش، فن پاروں میں پاکستان کے مختلف رنگ اور ثقافتیں اجاگر۔ سرکاری تعلیمی اداروں میں مفت کھانے کی فراہمی، کھانا کیسے تیار ہوتا ہے، خصوصی کچن کی سیر آپ کو کرائیں گے پروگرام میں۔ جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں یوم دفاع و شہداء کی پروقار تقریب، دہشت گردی کے خاتمے تک قربانیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، آرمی چیف کا تقریب سے خطاب۔ بحری دفاعی صلاحیتوں میں شاندار اضافہ، یوم دفاع کے موقع پر پاک بحریہ میں 2 جنگی جہاز مزید شامل۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی علماء اور مشائخ سے ملاقات۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹری واکینٹ کا ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنانے میں کلیدی کردار، ادارے نے گزشتہ سال 35 ارب روپے کی ریکارڈ پیداوار کی۔ اسلام آباد میں پی ڈبلیو ڈی ملازمین کا احتجاج، پولیس کے لاٹھی چارج کے بعد مظاہرین منتشر۔ جی تو ناظرین، لاہور اسلام آباد کی خاص خبریں تو آپ نے جان لی۔ اب آپ کے پیش خدمت ہے اس ہفتے کی کراچی کی خاص خبریں، لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے پیش خدمت ہے ان خبروں کی ہیڈ لائنز۔ یوم دفاع پاکستان پر سندھ اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور، شہداء اور ان کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ڈریگنز آف پاکستان کی عظیم الشان تقریب ایوارڈز میں بہترین مارکیٹنگ کمپنیز کی جیت۔ جامعہ کراچی کے شعبہ فوڈ سائنسز کے زیر اہتمام نیوٹریشن ایکسپو کا کامیاب انعقاد۔ کراچی کے تعلیمی اداروں میں اطالوی زبان اور اٹلی میں اردو زبان کو فروغ دیا جائے، وائس چانسلر۔ سندھ دستکاری کے ورثے کو فروغ دینے کے لیے ثقافتی نمائش کا انعقاد۔ گورنر سندھ سے چین کے سفیر اور امریکی قونصل جنرل کی خصوصی ملاقاتیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے 2 ارب کی 138 ڈبل کیبن لگژری گاڑیوں کی منظوری دے دی۔ کراچی شہر میں تاحال 1,21,000 سے زائد پودے لگائے گئے، مزید کام جاری۔ ٹک ٹاکرز پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت ایکشن کا حکم نامہ جاری۔ اور ناظرین، اب وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی بقیہ خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے خبریں تفصیل کے ساتھ۔
ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس خبر سے کہ یوم دفاع پاکستان کے موقع پر سندھ اسمبلی میں ایوان نے دفاع وطن میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو سلام اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے متفقہ قرارداد منظور کر لی۔ ایوان کی کارروائی کا آغاز قومی ترانے کے ساتھ کیا گیا، جس کے احترام میں اسپیکر سمیت تمام ارکان اپنی نشستوں سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر وزیر داخلہ و پارلیمانی امور ضیاء الحسن انجار کی جانب سے یوم دفاع پاکستان کی مناسبت سے ایک قرارداد پیش کی گئی، جس کی حمایت ایوان میں موجود تمام پارلیمانی گروپوں نے بھی کی۔ قرارداد میں افواج پاکستان کی بے مثال اور لازوال قربانیوں پر انہیں شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا گیا کہ 6 ستمبر کا دن وطن عزیز کے دفاع کے لیے تاریخی قربانی کو یاد دلاتا ہے۔ ڈریگنز آف پاکستان کے ایوارڈز کی افتتاحی تقریب کراچی کے ایک مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی، جس میں ڈریگنز آف ایشیا کے ڈائریکٹر مائک ڈی سلوا اور انڈسٹری کے بہت سے ماہرین اور ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔ اس تقریب کا انتظام ایڈورٹائزنگ ایکسپرٹس کے منفرد فورم ایڈ اسٹریٹ نے کیا تھا، جو اپنے دریلانہ اقدامات سے جانا جاتا ہے۔ اس موقع پر ایڈ اسٹریٹ کے بانی سید سعد ہاشمی کا کہنا تھا کہ ہم مارکیٹنگ انڈسٹری کو کامیاب بنانے اور بین الاقوامی اشتراک کے مراحل میں ہیں اور اسے مزید بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ ڈریگنز آف ایشیا نے ایشیا پیسیفک ریجن میں مارکیٹنگ کی اثر پذیری اور کامیابیوں کا اعتراف کرتے ہوئے 10 درجہ بندیوں میں جیتنے والوں کی شاندار انداز میں پذیرائی کی گئی، جس کا مقصد انڈسٹری میں ان کی غیر معمولی کامیابیوں اور کردار کو اجاگر کرنا تھا۔ ڈریگنز آف پاکستان نے مارکیٹنگ میں باکمال کارکردگی کا نیا معیار مقرر کیا ہے اور پوری مارکیٹنگ انڈسٹری اب اس پلیٹ فارم پر شاندار کارکردگی دکھائے گی اور کامیابیاں سمیٹنے کی متلاشی ہے۔ ڈریگنز آف پاکستان کو حقیقت بنانے کا سفر ایڈ اسٹریٹ کی ٹیم نے طے کیا ہے۔ بلا شبہ 2024 کے اس ایونٹ کے بعد ناظرین کو 2025 کے ایونٹ میں زیادہ بڑے اور مزید بہترین ایونٹ کی امید ہے۔ ہفتہ غذائیت کی مناسبت سے جامعہ کراچی کے شعبہ فوڈ سائنسز، ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹکس کے زیر اہتمام 5 ستمبر کو نیوٹریشن ایکسپو کا انعقاد کیا گیا، جس میں سندھ کی مختلف جامعات کے طلباء و طالبات کی جانب سے غذائی امور سے متعلق مختلف اور تکنیکی بنیادوں پر تیار کیے گئے پروجیکٹس کی نمائش کی گئی۔ نیوٹریشن ایکسپو کے موقع پر مال نیوٹریشن کے موضوع پر سیمینار بھی منعقد کیا گیا۔ کراچی کے تعلیمی اداروں کے وائس چانسلرز نے اٹلی کی معروف یونیورسٹیوں میں انگریزی میں پڑھائے جانے والی ڈگری پروگرامز کو سراہتے ہوئے زور دیا ہے کہ اطالوی زبان اور اٹلی میں اردو زبان کو فروغ دیا جائے۔ اٹلی کے اورینٹل یونیورسٹی آف نیپلز کے چانسلر پروفیسر رابرٹو توتولی نے IBA کی دعوت پر کراچی کا دورہ کیا۔ اطالوی پروفیسر کے ہمراہ قونصل جنرل اٹلی نے IBA اور کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے ملاقات کر کے تعاون اور اشتراک عمل کے ممکنہ امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ اورینٹل یونیورسٹی آف نیپلز کا کراچی یونیورسٹی کے ساتھ اشتراک عمل کا معاہدہ 2022 میں طے کیا جا چکا ہے، جبکہ IBA کے ساتھ بھی طویل مدتی شراکت داری جاری ہے۔ اطالوی اور پاکستانی یونیورسٹیوں کے درمیان تبادلے بنیادی طور پر نیچرل سائنسز، انجینئرنگ، میڈیسن اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ہوتے رہے ہیں۔ سندھ میں بلوچستان کے لگ بھگ 600 طلباء اٹلی میں گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ اور ڈاکٹر ڈگری پروگرام میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کراچی کے کونسل آف فارن ریلیشنز کے تحت سندھی دستکاری کے ورثے کو فروغ دینے اور سندھ کی منفرد ثقافت کو منانے کے لیے ایک نمائش کا اہتمام مقامی ہوٹل میں کیا گیا۔ تقریب کا افتتاح وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کیا۔ اس موقع پر وزیر بلدیات سندھ نے کہا کہ اس طرح کی نمائش کے انعقاد کے ذریعے سندھی ثقافت کو تحفظ اور فروغ ملتا ہے۔ انہوں نے کاریگروں کی مدد کرنے اور کاٹیج انڈسٹری کے فروغ کے لیے حکومت کے عزم پر زور دیا۔ نمائش میں جاپان، ترکی، امریکہ، ایران، بنگلہ دیش اور روس جیسے مختلف ممالک کے سفارتکار، کاروباری رہنما اور ثقافتی شائقین شامل تھے۔ ان کی موجودگی نے سندھ کے ثقافتی ورثے میں بین الاقوامی دلچسپی اور اس کی فنی روایت کی عالمی مطابقت کو اجاگر کیا۔ معززین نے سندھ کے ساتھ تجارتی مواقع تلاش کرنے اور ثقافتی تبادلوں میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سے چین کے سفیر جانگ زیڈ ڈونگ اور امریکہ کے نئے تعینات قونصل جنرل اسکاٹ اورہام نے گورنر ہاؤس میں ملاقاتیں کیں۔ چین کے سفیر سے ملاقات میں پاک چین دو طرفہ تعلقات، سی پیک منصوبہ، صوبے میں چین کی سرمایہ کاری سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
इस मौके पर गवर्नर सिंध ने कहा कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी है। चीन की तरक्की के मॉडल से इस्तिफादा हासिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सी पैक मंसूबे में सर्कुलर रेलवे की तकमील खित्ते के लिए अहम साबित होगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में चीन की मदद और मुआवनत से तेज़ तरीन तरक्की यकीनी है। चीन के सफ़ीर ने कहा कि हैग्रंग ग्रुप काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद है। हैग्रंग ग्रुप इन्वर्टर्स और बैटरीज की तैयारी का पाकिस्तान में पहला चीनी इदारा होगा। चीन के सफ़ीर ने शजरकारी मुहिम के तहत गवर्नर हाउस में पौधा भी लगाया। सिंध में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला किया गया है। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से सेक्रेटरी फाइनेंस सिंध को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि वज़ीर आला सिंध ने 138 डबल केबिन 4x4 की ख़रीदारी के लिए 1 अरब 99 करोड़ 18 लाख रुपए की समरी मंजूर कर ली है। इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट फौरी तौर पर मंजूर करदा रकम जारी करे ताकि सिंध में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर्स को गाड़ियों की फराहमी मुमकिन बनाई जा सके। वाज़ेह रहे कि डबल केबिन गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और CEO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद की जानिब से माए कोलाची रोड पर बेनज़ीर भुट्टो पार्क से अमेरिकन काउंसलेट और शॉन सर्कल तक शजरकारी मुहिम के आगाज़ कर दिया गया। इस मौके पर मेयर कराची ने कहा कि शजरकारी मुहिम का मकसद मौसमियाती तब्दीलियों से निपटना और माहौलियाती इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है और हमें शजरकारी करके कराची को एक सरसब्ज़ और पायदार शहर में तब्दील करना है। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत मुनक्किदा इजलास में बताया गया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िला इंतज़ामिया ने ताहाल 1,21,000 से ज़ायद पौधे लगाए हैं। कमिश्नर ने इस शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेने वाले सरकारी और निजी इदारों और गैर सरकारी तंजीमों के ताउन को सराहा। उन्होंने कहा कि शहर में दरख्तों की कमी दूर करने की कोशिशें जारी रहेंगी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने पुलिस कवायद ज़वाबित और माशरती आदाब को बालाए ताक रख कर टिकटॉक बनाने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन के अहकामात जारी कर दिए। एडिशनल IG कराची, जोनल DIGs, SSPs कराची को जारी किए गए अहकामात में कहा गया है कि बेहुदा ज़ूम आइनी वॉइस ओवर, प्लेबैक सॉन्ग और बदलिहाजी पर मुश्तमिल वीडियोस बनाने और अपलोड करने वाले पुलिस टिकटॉकर्स के खिलाफ फिलफौर महकमाना और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस किस्म की वीडियोस बनाकर महकमा पुलिस फोर्स की बदनामी का बाइस बनने वालों की पुलिस फोर्स में कोई गुंजाइश नहीं है। महकमा पुलिस एक यूनिफॉर्म डिसिप्लिन फोर्स है। पुलिस वर्दी का एहतराम हम सब पर लाजिम है। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद लाहौर से अस्का अहमद आपको बताएंगी लाहौर की ख़ास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब में मुल्क की तारीख के पहले और सबसे बड़े स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज़ हो गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने DG खान में चीफ मिनिस्टर स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने डेरा गज़ी खान गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की हर क्लास में जाकर बच्चों को दूध के पैकेट दिए। मरीम नवाज़ ने बच्चों से उनकी सेहत और तालीम के बारे में दरियाफ्त किया। देखिए ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। डेरा गाजी खान के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा वो जुबानी जमा खर्च नहीं बल्कि अमली तौर पर काम करने पर यकीन रखती हैं। इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा, आ रहा है, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितना हम आपको फैसिलिटेट कर सकें बच्चों, जितना मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ वो मैं करूँ। और मैं हर रोज़ सुबह दोपहर शाम रात मैं आप सबके बारे में सोचती हूँ। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि हमारी टीम दिन रात काम कर रही है। 7 साल के बाद महंगाई के जिन को काबू किया है। आपकी टीचर ट्रेनिंग्स पे हम काम कर रहे हैं, आपकी स्कूल की आउटसोर्सिंग पे हम काम कर रहे हैं, आपकी गेम्स पे, आपकी स्पोर्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तलबा की नशिस्तों पर जाकर उन्हें दूध के डब्बे पेश किए। बच्चों को दूध के पैकेट खुद खोल कर दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज को कमिश्नर ऑफिस पहुंचने पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। लाहौर में 74 मरतबा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ी के मालिक पर 35,900 रुपए जुर्माना आयद करके गाड़ी बंद कर दी गई। शहर में ई चलान से बचने के लिए गाड़ियों की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है।
नाज़रीन, आपको बताएं, भारत की जेलों में कैद पाकिस्तानियों में से 14 ने अपनी सजाएं मुकम्मल की और रिहा होकर वापस पाकिस्तान पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक भारतीय हुकाम ने 14 पाकिस्तानी शहरियों को जुम्मे को वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के हवाले कर दिया, जिनमें 9 आम शहरी और 5 माहीगीर शामिल हैं। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक भारत से रिहा होकर आने वाले शहरियों को कानूनी कार्रवाई के बाद उनके घरों को रवाना कर दिया जाएगा। माहीगीरों को कराची रवाना किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और भारत ने रवा साल 1 जुलाई को एक दूसरे के साथ कैदियों की फहरिस्तों का तबादला किया था जो एक दूसरे मुल्क की जेलों में कैद हैं। पाकिस्तान ने भारत को भारतीय जेल में कैद 452 पाकिस्तानी शहरियों और माहीगीरों की फहरिस्त फराहम की थी, जबकि भारत ने पाकिस्तान में कैद 452 भारतीय मुबैना भारतीय शहरियों और माहीगीरों की फहरिस्त पाकिस्तान के हवाले की थी, जिनमें अब 14 कैदी रिहा होकर वापस पाकिस्तान पहुंच गए। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। लाहौर में तीफी बट और ट्रकावाला ग्रुप्स के दरमियान गैंग वार के दौरान मासूम शहरियों की जिंदगियों को खतरा है। पुलिस ने दोनों ग्रुप्स के मुतहरिक कारिंदों और खानदान के अफराद को घरों तक महदूद करने का फैसला कर लिया। नजरबंदी के लिए DC लाहौर को खत लिखा जाएगा। तीफी बट ग्रुप के 13 जबकि टीपू ग्रुप के 10 अफराद को नक्शे अमन के खदशात पर जेलों में बंद किए जाने का इम्कान वाज़ेह हो गया। जावेद बट कत्ल की तफ्तीश में पुलिस ने क्लोज सर्किट फुटेज में दिखाई देने वाले 5 मोटरसाइकिल सवारों को मशकूक करार दे दिया। मजीद बता रहे हैं नुमान शेख इस रिपोर्ट में। लाहौर में गैंग वॉर, राहगीर और मासूम शहरी भी खतरे में। पुलिस ने ट्रकावाला और तीफी बट ग्रुप को घरों तक महदूद करने का फैसला कर लिया। दोनों ग्रुपों के मुतहरिक कारिंदों को जेल भिजवाने पर गौर शुरू कर दिया गया। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान दोनों ग्रुप्स के कारिंदों और घर के अफराद की नजरबंदी के लिए DC लाहौर को खत लिखेंगे, जबकि दोनों ग्रुप्स के 23 अफराद को गिरफ्तार करके चंद माह तक जेल में रखा जाने का भी इम्कान है, जिनमें अमीर मौसब, कैसर बट और अमीर फतेह के करीबी अजीज भी शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक फैसला शहरियों के तहफ्फुज के पेश नजर किया गया। उधर गैंग वॉर में जावेद बट कत्ल केस की तफ्तीश करते हुए क्लोज सर्किट फुटेज कैमरों की मदद से 60 मुश्तबा मोटरसाइकिलों की निशानदही की गई, जिनमें से 5 को मशकूक करार दिया गया, जिनके सवारों ने हेलमेट पहन रखे थे और मकतूल के घर के करीब से कैनाल रोड तक आते दिखाई दिए। पुलिस का कहना है कि मशकूक मोटरसाइकिल सवारों की तस्वीर तफ्तीशी टीमों को भिजवा दी गई हैं। जल्द शूटर्स की शनाख्त कर ली जाएगी। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। स्मोक पर काबू पाने के लिए मौसम सरमा से कबल लाहौर ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर CTO लाहौर ने आगाही मुहिम शुरू कर दी। अमारा अत्तर का कहना था कि आज से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा। देखिए सैयद मुशर्रफ शाह की ये रिपोर्ट। स्मोक के तदारक के लिए चबूरची चौक में लाहौर ट्रैफिक पुलिस और महकमा माहौलियात की आगाही मुहिम। CTO लाहौर अमारा अतर का कहना था कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ी जब तक ठीक नहीं करवाई जाएगी तब तक इसे नहीं छोड़ा जाएगा। CTO लाहौर ने बताया कि माहौल आलूदा करने वाली 19,000 से ज़ायद गाड़ियां ख़तरनाक हैं। धुआं छोड़ने वाली 890, रेत मट्टी और दीगर माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली 10,000 से ज़ायद गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। CTO लाहौर अमारा अथर का कहना था कि बग़ैर फिटनेस सर्टिफिकेट 1810 गाड़ियों को चालान, जबकि इंतहाई खस्ता हाल 440 फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल करवाए गए। स्मोक तदारक के लिए अवामी राब्ता मुहिम भी शुरू की गई। सोशल मीडिया पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की वीडियोस पर भी क्रैकडाउन जारी है। जहाँ तक ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट का ताल्लुक है, आपको पता है अराउंड 83% जो है वो कॉज बताई गई कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है उसकी 83% जो है रीज़न वो हमारी ट्रांसपोर्ट है। DG इन्वायरमेंट इमरान हामिद का कहना था माहौलियाती कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। स्मोक के तदारक के लिए हुकूमती सतह पर टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स की तश्कील की गई। आगाही मुहिम के दौरान CTO की जानिब से शहरियों में पम्फलेट भी तकसीम किए गए। नाज़रीन, लाहौर के गैरिजन कब्रिस्तान में 16 पंजाब रेजिमेंट के उन शोहदा की यादगार और कब्रें हैं जिन्होंने 1965 की पाक भारत जंग में लाहौर का दिफा करते हुए BRB नहर के मशरकी जानिब डोगरा कला के इलाके में अपनी जानों का नजराना पेश किया। यौम दिफा के मौके पर इस जंग के गाजियों और पाक फौज के अफसरों जवानों ने शोहदा की यादगार पर सलामी दी। मजीद बता रहे हैं आसिफ महमूद इस रिपोर्ट में।
لاہور کے گیریزن قبرستان میں یہ 16 پنجاب ریجمنٹ کے ان شہداء کی یادگار اور قبریں ہیں جنہوں نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں لاہور کا دفاع کرتے ہوئے BRB نہر کے مشرقی جانب ڈگرائے کلاں کے علاقہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس جنگ کے غازیوں، پاک فوج کے افسروں اور جوانوں نے شہداء کی یادگار پر سلامی دی اور جنگ کے واقعات بتائے۔ دشمن اپنی کیجولٹیز اٹھانے کے لیے آئے تو 26 گاڑیوں میں اپنے وہ جو مردہ تھے لوگ وہ اٹھا کے لے کے گئے۔ ہمارے کرنل صاحب تھے یونٹ کے کمانڈر کرنل گولوالا، وہ پارسی تھے اور انہوں نے جس طریقے سے جنگ لڑی، ایک ایک مورچے میں جا کے جب شیلنگ ہو رہی ہوتی تھی، فائرنگ ہوتی تھی، جا کے جوانوں کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ 1965 کی اس جنگ میں 16 پنجاب ریجمنٹ کے سب سے زیادہ 106 جوان شہید ہوئے تھے۔ اس ریجمنٹ کو بے مثال جرت، بہادری اور قربانیوں پر 11 فوجی اعزاز دیے گئے، جن میں 5 ستارہ جرت بھی شامل ہیں۔ ناظرین بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب۔ آپ کو بتائیں میاں والی میں پنجاب پولیس کے اہلکاروں نے تھانہ عیسیٰ خیل میاں والی کی قبول خان پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ پولیس کے جوابی رد عمل میں حملہ آور فرار ہو گئے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق 12 سے 14 دہشت گردوں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر قبول خان چیک پوسٹ پر راکٹ لانچرز اور ہینڈ گرنیڈ سے حملہ کیا، جسے پنجاب پولیس کے جوانوں نے شدید جوابی فائرنگ کے نتیجے میں ناکام بنا دیا۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ قبول خان پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ۔ پنجاب پولیس کے جوانوں نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق 12 سے 14 دہشت گردوں نے رات قبول خیل چیک پوسٹ پر راکٹ لانچرز اور ہینڈ گرنیڈ سے حملہ کیا۔ چیک پوسٹ پر تعینات پنجاب پولیس کے جوان الرٹ تھے، جنہوں نے شدید جوابی فائرنگ کی اور بزدل دہشت گردوں کا حملہ پسپا کر دیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ DPO میاں والی اختر فاروق فوری طور پر چیک پوسٹ پہنچے، بالائی مورچے پر خود گئے اور جوانوں کو حملہ ناکام بنانے پر شاباش دی۔ DSP عیسیٰ خیل اور SHO بھی بھاری نفری کے ساتھ پولیس چیک پوسٹ پر پہنچے۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ IG پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور نے DPO میاں والی چیک پوسٹ قبول خیل کے بہادر اہلکاروں کو شاباش دی ہے اور کہا ہے کہ گزشتہ چند ماہ میں پنجاب پولیس پر دہشت گردوں کا یہ 9واں حملہ ہے جو ناکام بنایا گیا۔ پنجاب پولیس بین الصوبائی سرحدی چوکیوں پر دہشت گردوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہے۔ ناظرین آخر میں آپ کو بتائیں چیمپئن کپ کرکٹ ٹورنامنٹ 5 منٹورز وقار یونس، مصباح الحق، ثقلین مشتاق، سرفراز احمد اور شعیب ملک نے 5 کپتانوں کا انتخاب کر لیا۔ سعود شکیل ڈولفنز، شاہد افریدی لائنز، شاداب خان پینتھرز کے کپتان ہوں گے۔ محمد حارث اسٹیلینز اور محمد رضوان وولفز ٹیم کے کپتان ہوں گے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ چیمپئنز کپ کرکٹ ٹورنامنٹ 5 مینٹورز وقار یونس، مصباح الحق، ثقلین مشتاق، سرفراز احمد اور شعیب ملک نے 5 کپتانوں کا انتخاب کر لیا۔ سعود شکیل ڈولفنز، شاہین افریدی لائنز، شاداب خان پینتھرز کے کپتان ہوں گے۔ محمد حارث اسٹیلینز اور محمد رضوان وولفز ٹیمز کے کپتان مقرر۔ سابق کپتان بابر اعظم محمد حارث کی قیادت میں کھیلیں گے۔ ہر ٹیم کے لیے 20-20 کھلاڑیوں کا اعلان۔ 10 ستمبر کو ان کی تعداد 15-15 کر دی جائے گی۔ 50 اوورز کا ٹورنامنٹ سنگل لیگ کی بنیاد پر فیصل آباد میں 12 سے 29 ستمبر تک کھیلا جائے گا۔ سینٹرل کانٹریکٹ والے کھلاڑیوں میں سعود شکیل، فہیم اشرف اور سرفراز احمد ڈولفنز کا حصہ ہیں۔ عبداللہ شفیق، عامر جمال، امام الحق، شاہین افریدی لائنز میں شامل۔ سائم ایوب، شاداب خان اور اسامہ میر پینتھرز، جبکہ ابرار احمد، بابر اعظم، حارث رؤف، محمد حارث، شان مسعود، طیب طاہر اور زمان خان اسٹیلینز کی نمائندگی کریں گے۔ فخر زمان، افتخار احمد، محمد رضوان، نسیم شاہ، سلمان علی آغا، شاہ نواز دھانی وولفز میں شامل ہیں۔ محمد نواز، عماد وسیم فٹنس مسائل کی وجہ سے آؤٹ ہو گئے ہیں، جبکہ احمد شہزاد، اعظم خان، حارث سہیل، محمد عامر اور عمر اکمل نے کھیلنے سے معذرت کر لی ہے۔ ناظرین یہ تھا لاہور کا احوال۔ اسلام آباد سے جوائن کریں گی رضیہ خان، لیکن ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। वफाकी दारुल हुकूमत में 16 साल बाद पहली बार पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत की यूनियन काउंसिल 4 में एक बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई, जबकि मुल्क भर में ये रवां साल का 17वां पोलियो केस सामने आया है। हुकूमत ने पोलियो के फैलाव को रोकने के लिए जामिया रोड मैप बना लिया है। 9 सितंबर से मुल्क भर के 115 अजला में पोलियो मुहिम शुरू होगी, जिसमें 3 करोड़ बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ बनाया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। PNC इस्लामाबाद में सजी वतन का हर रंग के नाम से खसूसी तस्वीरी नुमाइश में पेश किए गए फनपारों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ रंग और सकाफतों को उजागर किया गया। शुरका की बड़ी तादाद इस रंगारंग नुमाइश को देखने पहुंची। तस्वीरी नुमाइश की झलकियां आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में सजी मारूफ फोटोग्राफर अजहर हफीज की तस्वीरी नुमाइश वतन का हर रंग दिलकश अंदाज में उजागर हुआ और आम आदमी के जज्बात और एहसासात की भी तर्जुमानी की गई। पाकिस्तान के रवायती खेल में शहरियों की तवज्जो का मरकज रहे। ये मेरा 13वां शो है। फोटोग्राफी में मुझे 35 साल काम करते हो और 7 दिन 4 किताबों की लॉन्चिंग है। इसका नाम है ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रेस, क्योंकि इसमें किताबें भी ब्लैक एंड वाइट हैं और सारी तस्वीरें भी ब्लैक एंड वाइट हैं। ये मेरा 35 साल का काम है और मेरा 40 साल का जो लिखा हुआ है वो किताबों की शक्ल में मैं पेश कर रहा हूँ। अजहर हफीज का कहना है स्याह और सफ़ेद रंग के बगैर हर रंग अधूरा है। उन्होंने इन तस्वीर के जरिए अमन का पैगाम दिया है। आज का जो थीम है वो वाइट ब्लैक एंड ग्रे है, तो यहाँ पे सारी जितनी भी फोटोज़ हैं वो सारी इन्हीं कलर्स में हैं और बाकी कलर्स में नहीं है थीम के मुताबिक। इसके अलावा 4 किताबें भी हैं जिनका लॉन्च है, तो फोटोग्राफ्स जो मैंने सारी देखी हैं सारी बहुत अच्छी। अजहर हफीज के फनपारों और तस्वीर से पाकिस्तान से आगाही हुई और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। शुरका खुश थे कि इन्हें आज प्यारे पाकिस्तान के कई अछूते मनाजर देखने को मिले। दुनिया भर में पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद करने में इस तरह की तस्वीरी नुमाइश मुस्बत किरदार अदा करती हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सरकारी तालीमी इदारों में मुफ्त खाने की फराहमी बिला तातुल जारी है। मुफ्त खाने के प्रोग्राम का मकसद बच्चों में ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना और एक बेहतर न्यूट्रिशनस माहौल फराहम करना है। हुकूमत पाकिस्तान रोज़ाना की बुनियाद पर 65,000 तलबा को मुफ्त खाना फराहम कर रही है। ये खाना किस तरह तैयार किया जाता है और तालीमी इदारों तक इसकी मुंतकिली कैसे की जाती है, इस पर हमने एक खसूसी रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं। सरकारी तालीमी इदारों में मुफ्त खाना प्रोग्राम जारी। सेक्रेटरी एजुकेशन मोहिउद्दीन वानी की काविशों से वज़ीर आज़म सेहत प्रोग्राम के अहम जुज़ पर अमल दरामद। 65,000 बच्चों को दोपहर का खाना मुफ्त दिया जा रहा है। प्रोग्राम का मकसद ग़िज़ाई किल्लत को कम करने, सेहत के नताइज को बेहतर बनाने और सेहतमंद आदात को फ़रोग़ देना है। इदारों के सरबराहान ने मुफ्त खाने की तैयारी का जायजा लिया। स्कूल मील्स प्रोग्राम का मकसद तमाम सरकारी प्राइमरी स्कूलों में तलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम करना है। प्रोग्राम एक मरकजी बावर्ची खाने के जरिए काम करता है, जिसमें रोजाना 65,000 अफराद का खाना तैयार करने की गुंजाइश होती है, जिसको 20 गाड़ियों के जरिए तकसीम किया जाता है ताकि बरवक्त और मौसर तरसील को यकीनी बनाया जा सके। प्रिंसिपल्स ने खाने की तैयारी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि भाप से गर्म करने का अमल खाने के मयार हिफ्ज़ान सेहत को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किचन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हिफ्ज़ान सेहत के सख्त मयारात पर अमल करते हुए इंतहाई साफ सुथरा माहौल बरकरार रखता है। हुक्काम का कहना है कि खाने के प्रोग्राम से तलबा की ग़िज़ाई कमी समेत मजमूई सेहत बेहतर हुई है। बेहतर खाने से स्कूलों में दाखिले का रुझान भी बढ़ा है। तलबा की हाजिरी में भी बेहतरी आई है। मुफ्त खाने के प्रोग्राम के नतीजे में तलबा में बेहतर ग़िज़ाइयत और सेहत के नताइज की निशानदही से बॉडी मास इंडेक्स बेहतर हुआ है। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में यौम दिफा और शोहदा की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आर्मी चीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कौम और बिलखुसूस नौजवान हमारा कीमती असासा हैं। दहशत गर्दी के खात्मे तक कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहेगा। अज़्म इस्तेहकाम कोई नया ऑपरेशन नहीं और ना ही आबादी की नकल मकानी होगी। GHQ में वज़ीर आज़म की आमद पर सलामी पेश की गई, जबकि आर्मी चीफ ने उनका इस्तकबाल किया। फिर शहबाज शरीफ ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाकर दुआ की। यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर बहरी दिफाई सलाहियतों में शानदार इजाफा। 6 सितंबर को पाक बहरिया के बेड़े में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत की तकरीब मुनक्किद की गई। PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त शमूलियत से पाक नेवी मज़ीद मजबूत हो गई। PNS बाबर तुर्किया और PNS हुनैन रोमानिया के ताउन से तैयार किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उलमा और मशाइख से मुलाकात के दौरान कहा कि जिस आग में हमें धक्का दिया जा रहा है हमें इससे निकलना है।
आज के दिन कौम को पैगाम दें कि दहशत गर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद हैं। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाला दहशत गर्द है। हम सब पाकिस्तानी हैं और हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। मोहसिन नकवी की उलमाए कराम से मुलाकात का मुकम्मल अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। सियासी क़यादत और उलमाए कराम दहशत गर्दी के खिलाफ हम आवाज़। उलमाए कराम ने दहशत गर्दी के बयानियों को यकसर मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन से चेयरमैन मरकजी रूत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर क़यादत तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमाए कराम और दीगर मज़ाहिब आलम के रहनुमाओं की मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला शख्स या तंजीम दहशत गर्द है। जो भी शख्स या तंजीम स्टेट के खिलाफ बंदूक उठाती है वो दहशत गर्द है। किसी को भी किसी भी तरीके से कत्ल करना और ख़ास तौर पर इस्लाम के नाम पर कत्ल करना, ये भी कोई कहीं पे इजाज़त नहीं है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, उलमा इकराम और दीगर मज़ाहिब आलम के रहनुमाओं ने भी खिताब किया कि दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और खुदकश हमले हराम हैं और रियासत के अंदर रियासत और उसमें हथियार उठाना गैर शरई अमल है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, हमने मिलकर नई नस्ल को बारूद और आग के खेल से बचाना है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह कैंट न सिर्फ मुल्क की दिफाई ज़रूरियात पूरा करने के लिए एक अहम किरदार अदा कर रही है, बल्कि 40 से ज़ायद दोस्त ममालिक को भी जदीद टेक्नोलॉजी से लेस असला फराहम कर रही है। वजारत दिफाई पैदावार के मातहत आज ये फैक्ट्री एक बहुत बड़ा इदारा बन चुका है, जिसके 14 बड़े हिस्से हैं। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अब मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के अलावा बरामदात भी कर रही है, जिससे कसीर ज़र मुबादला हासिल होता है। गुज़िश्ता साल इस फैक्ट्री ने 35 अरब रुपए की रिकॉर्ड पैदावार की और मुल्क की ज़र मुबादला में अहम इजाफा किया। मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। साबिक़ वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने 2 मई 1949 को पाकिस्तान की पहली आर्डीनेंस फैक्ट्री का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान आर्डीनेंस फैक्ट्री वाह मुल्क की मसल्ह फ़ौज और सिक्योरिटी अदारों की असले की ज़रूरत पूरी करती है। इसकी मसनूआत 40 दोस्त ममालिक को भी बरामद की जाती हैं। अदारे ने गुज़श्ता साल 35 अरब रुपए की रिकॉर्ड पैदावार के साथ 25 अरब रुपए टैक्स और ड्यूटी की मद में हुकूमती खजाने में जमा कराए, जिसके अंदर हम आर्मर एम्यूनेशन में, आर्टिलरी एम्यूनेशन में, इन्फेंट्री एम्यूनेशन के अंदर और वेपन सिस्टम्स के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। और मुस्तकबिल करीब में हम यकीनन इस तरह के एम्यूनेशन, गोला बारूद और हथियार डेवलप करना चाह रहे हैं जो कि पाक फ़ौज की इफेक्टिव मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। पाकिस्तान आर्डीनेंस फैक्ट्री वाह का क़याम 1951 में अमल में लाया गया। एक असला साज फैक्ट्री, 13 असला साज फैक्ट्रियों और 14 मातहत अदारों के कम्प्लेक्स पर मुश्तमिल है। जो हमारे पास लाइट स्नाइपर राइफल है उसकी 1 किलोमीटर रेंज होती है और 1 MOA उसकी एक्यूरेसी होती है और पाकिस्तान आर्मी में इंडक्ट हो चुकी है। FCKPK को प्रोवाइड की गई है, इसके अलावा नेवी वगैरह को भी प्रोवाइड की गई है। POF में 19,000 प्लांट्स हैं। जदीद मशीनों पर मुख्तलिफ अक़साम का एम्यूनेशन बनाया जाता है, जिसमें असॉल्ट राइफल्स, पिस्टल, मशीन गन्स, स्मॉल आर्म्स, एम्यूनेशन, बम और ग्रेनेड के अलावा आर्टिलरी टैंक और एंटी टैंक शामिल हैं। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ का क़याम 1951 में हुआ था और 1951 से लेकर अब तक हम अपनी ट्राई सर्विसेज के लिए आर्म्स एम्यूनेशन की रिक्वायरमेंट उनकी सालाना या एनुअल रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एक्सपोर्टिंग आवर डिफेंस प्रोडक्ट्स to more than 40 friendly countries. On the basis of their operation कि हम उसको ड्रोन से ड्रॉप कर रहे हैं या मोटर से फायर कर रहे हैं और on the basis of their फ्यूज़ फंक्शनिंग को एयर में ब्रस्ट हो रहा है या ऑन पॉइंट डेटोनेटिंग है, तो हम डिफरेंट किस्म के यहाँ पे मोटर बॉम्ब्स बना रहे हैं। इंडिजिनसली POF डेवलप कर रही है जो कि हम अपनी आर्मी को भी दे रहे हैं और एक्सपोर्ट भी डिफरेंट किस्म के कर रहे हैं। POF 25 से ज़ायद नई मसनूआत और टेक्नोलॉजीज़ मुतारफ़ कराने जा रहा है। अदारे की पैदावारी सलाहियत में 175% इजाफा हो चुका है। इस्लामाबाद में PWD मुलाजमीन ने इदारे की बंदिश के खिलाफ कई रोज से जारी एहतजाज ख़त्म कर दिया। इंतज़ामिया की जानिब से श्रीनगर हाईवे खाली करने की डेडलाइन ख़त्म होते ही पुलिस ने ऑपरेशन किया और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की। PWD ऑफिस मैदान जंग बना रहा। ताहम मुलाजमीन PWD ऑफिस में घुसे तो पुलिस ने इमारत को घेरे में लिया। कई अफराद को हिरासत में लेने के बाद मुलाजमीन सड़क खाली करने पर आमादा हो गए। मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। महकमे की बंदिश के खिलाफ PWD के मुलाजमीन सड़कों पर आ गए।
श्रीनगर हाईवे ब्लॉक किया और नेशनल प्रेस क्लब के सामने जाकर धरना देने का ऐलान कर दिया। वफाकी पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंची और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए मुज़ाकरात किए, लेकिन मुलाजमीन ना माने। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की और दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद श्रीनगर हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ताहम मुलाजमीन वहां से निकले और अपने इदारे की इमारत में जमा हो गए। पुलिस हुक्काम का कहना है मुजाहिरीन ने PWD इमारत के अंदर से पुलिस पर पथराव किया, जिससे पुलिस अफसरान और मुलाजमीन भी जख्मी हुए। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रजिया खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।